Hello students, good morning. Jai Swami Narayan. All of you, welcome to class 4th in Atmiya Green School. My name is Prajakta and I'm your maths teacher. Now we'll start lesson number 5, factors and multiplies. So now all of you look at in your textbook. So now all of you look at in your textbook. We will start lesson number 5, factors and multiplies. But before starting our today's topic, first we will see what you had learned in this lesson. So what you had learned, students, all of you know very well, we had done multiplies. Then after we had done the property of multiplies. So how many property of multiplies? 5 property of multiplies. So first property of multiplies is every number is multiple of itself. Every number is multiple of itself. Then property number 2, every number is multiple of 1. Every number is multiple of 1. Then property number 3, a multiple of numbers is always greater than or equal to a number itself. A multiple of number is always greater than. Multiple of number is always greater than or equal to a number itself. Then property number 4, a number has an uncountable number of multiplies. A number has a uncountable number of multiplies. There are, then property number 5, there are no largest multiple of a number. There is no largest multiple of a number. So these are the property of the multiplies. Then after we had done the odd and even number. So which number is known as the odd number and which number is known as the even number? A number which is the multiple of 2. A number which is the completely divisible by 2. This is known as the even number. And the number which are not divided by 2. The number which is not completely divisible by 2, this is known as the odd number. So in the even number, last digit always the 2, 4, 6, 8. In the even number, always last number is the 2, 4, 6, 8 and 0. So this is the odd and even number. Then exercise 5.1, this also I had done. Then we had done the factors and multiplies. So factor means a number divide a factors of number divide the number without leaving a remainder. Factors means after the doing division, when after we will get the remainder G. We will get the remainder is the 0, means this is the factor of that number. Then when the product of the when we multiply two or more number, we get product. When we are multiply two numbers, so we will get the product. The product of multiple of each number, multiple उसको क्या बोलेंगे हम? मल्टीपल. मीन्स टू नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको बोलेंगे मल्टीपल. और डिवाइड करने के बाद जो भी हमें क्वेश्चन मिल जाएगा वो हो जाएगा फैक्टर्स. क्वेश्चन जो होगा वो होगा फैक्टर्स उस नंबर का. Then after we had done the finding the factors, how to find factor. So when we want to take out the factor of the any number, so for that we will divide the every numbers. मीन्स हम क्या करेंगे, जो स्टार्टिंग के नंबर से उसको हम डिवाइड करके देखेंगे. अगर वो नंबर डिवाइड हो रहा है कम्प्लीटली, मीन्स वो डिविजिबल हो जाएगा उस नंबर का. सो नाउ लिस्ट ऑल द फैक्टर्स ऑफ फॉलोइंग नंबर. यहाँ पे exercise 5.2 question number A already we had done in our last class. Now we will start question number B, list of all factors of following number. So first number is the 32. So now we will take out the factors of the 32. So how to take out the factors of 32? Now all of you look at here. हमें 32 के फैक्टर्स निकालना है. ठीक है, तो 32 के फैक्टर्स हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जो 32 है उसको 2, 3, 4, 5, 6 इस नंबर के साथ डिवाइड करके देख लेंगे. अगर वो कम्प्लीटली डिविजिबल होता है तो वो फैक्टर्स हो जाएगा. सो नाउ लुक एट हियर. हम क्या करेंगे, 2 को 32 के साथ डिवाइड करेंगे. 3 1 3, 2 1 2, 1 12, 16. मतलब पहला फैक्टर क्या हो गया है, 2 and 16. 32
इक्वल टू, सबसे पहले 1 इंटू 32 लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि 1 ये सभी नंबर का फैक्टर्स होता है। देन 32 इक्वल टू 2 इंटू 16, 2 इंटू 16 हो गया है। तो सेकंड फैक्टर हमारा क्या है, 2 एंड 16। जो नंबर डिवाइड करेंगे और जो क्वेश्चन थे वो 2 नंबर्स लिखते, ठीक है। देन 3 को 36 के साथ डिवाइड कर, सॉरी 32 के साथ डिवाइड करके देखें। 3 1 सा 3, 0 2, यहाँ पे रिमाइंडर हो रहा है, रिमाइंडर 2 बच रहा है, मतलब 32 3 का डिविजिबल नहीं है। देन 4 के टेबल में 32 आता है, यस 4 8 सा 32, 4 8 सा 32। सो नेक्स्ट फैक्टर क्या हो जाएगा, 32 इक्वल टू 4 इंटू 8। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 4 इंटू 8। देन 32 इज डिवाइडेड बाय 5, 5 के साथ डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा, तो 5 फैक्टर्स होगा क्या 32 का, नहीं। देन 6 5 सा 30, डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। 7 नहीं, 8 के टेबल में ऑलरेडी आता है। देन 9 10, 9 के टेबल में आते हैं क्या 32, नहीं। डायरेक्ट हम क्या लिख देंगे, 32 इक्वल टू 32 मल्टीप्लाई बाय 1। तो अभी हमें लिखना है फैक्टर 32 के। सो कैसे लिखेंगे, सो द फैक्टर्स ऑफ 32 आर, 32 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 32 के फैक्टर्स 1। जब भी हम फैक्टर्स लिखेंगे तो हम स्मॉल नंबर से लिखते जाएंगे। सो फर्स्ट इज द 1, देन 2, देन 3, देन उसके बाद 4, देन 16 एंड 32। सो 32 के फैक्टर्स क्या हो गए, 1 2, सॉरी 4 नॉट कमिंग, 1 2 4 16 and 32 और 1 is the 8. Again all of you look at here, 32 के फैक्टर्स क्या है, 1 2, देन उसके बाद 4, देन उसके बाद 8, देन 16 एंड 32, ये 32 के फैक्टर्स हो गए। सो लाइक दैट वी आर टेक आउट द फैक्टर। देन सेकंड इज द 48। सबसे पहले 48 इक्वल टू 1 इंटू 48 हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद 48 2 के साथ डिवाइड कर होता है, यस। अगर हम 48 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो कितना आता है, यहाँ पे करके देखेंगे। 48 को 4 2 सा 4 8 एंड 2 4 सा 8, 24 मीन्स सेकंड फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 24। देन हम क्या करेंगे, 48 को 3 के साथ डिवाइड करके देखेंगे। 3 1 सा 3, देन 1 8, 3 6 सा 18, 3 6 सा 18 मीन्स सेकंड फैक्टर क्या हो गया है, 16। सो 48 इक्वल टू 3 इंटू 16। देन 48 को हम 4 के साथ डिवाइड करके देखेंगे। 4 1 सा 4 0 8, 4 2 सा 8 0, सेकंड फैक्टर क्या आ गया है, 12। सो 48 इक्वल टू 4 इंटू 12। देन 5 के टेबल में 48 आता है क्या, नहीं। देन 6 के टेबल में 48 आता है क्या, डिवाइड करके देखेंगे। नाउ लुक एट हियर, 6 डिवाइडेड बाय 48 6 के टेबल में आता है क्या, नहीं आता है। 48 6 के टेबल में आता है क्या, नहीं आता है, तो वो 6 का डिविजिबल होगा क्या, नहीं होगा। देन 7 के टेबल में 48 आता है, 6 के टेबल में 48 आता है। 6 के टेबल में 48 8 वाले प्लेस पे आएगा। 48 इक्वल टू 6 इंटू 8, 6 के टेबल में 48 आता है 8 वाले प्लेस में, तो 6 इंटू 8 48। देन 6 हो गया है। 7 के टेबल में 48 आता है, नहीं आता है। 8 के टेबल में आता है, सो ये हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। 8 हो गया। देन 9 के टेबल में आता है क्या, 9 के टेबल में नहीं आता है। देन 10 नो। सो देन 48 इक्वल टू 48 मल्टीप्लाई बाय 1, ये लास्ट फैक्टर हो गया, ठीक है। तो 48 के फैक्टर्स क्या आ गए, सो द
फैक्टर्स ऑफ 48 आर। 48 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 1 2 3 4 6 8 12 16 24 एंड 48। 48 के फैक्टर्स क्या हो गए? 1 2 3 4 6 8 12 16 24 एंड 48। दिस आर द फैक्टर ऑफ 48। हम फैक्टर कैसे निकाल रहे हैं? हम जो नंबर है उसको हम डिवाइड करके देख रहे हैं। 2 3 4 6 जो बेसिक नंबर होते हैं 10 तक, उसके साथ डिवाइड करके देखेंगे। अगर वो डिवाइड होता है तो वो फैक्टर होता है, और जो भी क्वोशंट होगा और जो भी डिवाइड वाला नंबर होगा वो हमारा फैक्टर्स हो जाएगा। सो दिस इज द सेकंड नंबर। देन 3 numbers 18. So 18 first is the 18 equal to 1 into 18. Then 18 equal to 2 9s are 18. 18 equal to 3 6 are 18. 18 equal to 6 के टेबल में आता है, 7 के टेबल में आता है क्या? नहीं। 8 के टेबल में आता है क्या? 18 9 के टेबल में ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है। देन डायरेक्ट आता है 18 के ही टेबल में। 18 इक्वल टू 1 into 18। देन यहाँ पे हम लिख देंगे सो द फैक्टर्स ऑफ 18 आर। 18 के फैक्टर क्या हो गए? 1 2 3 6 9 एंड 18। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ द 18। ये जो मैं फर्स्ट में 1 into 18 लिख रही हूँ, और यहाँ पे आ जाएगा 18 into 1। ये जो लिख रही है यहाँ पे 1 into 18 और 18 into 1, ये दोनों में से आप एक भी लिख सकते हैं, दोनों को लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फैक्टर्स निकालना है। सो 1 2 3 6 9 एंड 80 फैक्टर्स। तो ये क्या हो गया? सेम हो गया। 1 into 18 करेंगे या 18 into 1 करेंगे तो वो सेम ही हो जाएगा। तो दो में से हम कुछ भी एक लिख सकते हैं। देन नेक्स्ट इज द 15। सो 15 फैक्टर्स। 15 2 के साथ डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा। 2 के टेबल में 15 आता है क्या? नहीं। देन 3 5 15। 4 के साथ डिवाइड होगा क्या? नहीं। 6 के साथ डिवाइड होगा क्या? नहीं। 7 के साथ नहीं। डायरेक्ट 15 इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाय 1। 15 मल्टीप्लाई बाय 1। तो सो द फैक्टर्स ऑफ 15 आर। 15 के फैक्टर्स क्या हो गए? 1 3 5 एंड 15। 15 के फैक्टर क्या हो गए? 1 3 5 एंड 15। 15 इक्वल टू 3 into 5, 15 into 1 into 5. So this is the factor of the 15. Then 6 number 35. 35 2 के साथ डिवाइड होगा क्या? नहीं होता है। लास्ट डिजिट 5 है। 2 के डिविजिबल के लिए लास्ट वाला डिजिट हमें 0 2 4 6 8 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे लास्ट वाला डिजिट 5 है तो ये 2 के साथ डिवाइड नहीं होगा। 3 के साथ होगा क्या? नहीं। 3 1 3 और 5 बच जाएगा। 4 के साथ होगा क्या? नहीं होगा। देन 5 के साथ, यस, 5 into 7। 5 into 7 57। नाउ देन नेक्स्ट इज द 5 हो गया है। देन 6 के साथ डिवाइड होगा क्या? 35 नहीं होगा। 7 के टेबल में आता है, यस 7 के टेबल में आता है। देन 8 के टेबल में आता है, नहीं। 9 के नहीं। 10 नो। सो नेक्स्ट इज द फैक्टर ऑफ 35 इक्वल टू 35 into 1। सो फैक्टर्स क्या हो गए? सो द फैक्टर्स, हमें देखना है कि वो जो पर्टिकुलर नंबर है टेबल में आता है क्या। अगर बिग नंबर है तो उसको हमें डिवाइड करके देखना पड़ता है। सो द फैक्टर्स ऑफ 35 आर। 35 के फैक्टर्स क्या है? 1 5 7 35। 35 के फैक्टर्स क्या हो गए? 1 5 7 35। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 6। नाउ एग्जाम्पल नंबर 7। Example number 7 is the 49.
49 का फैक्टर, ये 2 के साथ डिवाइड होगा क्या? नहीं। 3 नहीं। 4 3 के साथ डिवाइड होगा क्या? नहीं। लास्ट नंबर 9 है तो 3 के साथ नहीं होगा। देन 4 नहीं होता है, 5 के साथ नहीं, डायरेक्ट आता है 7 7 सा 49 और 49 इक्वल टू और एक नंबर हो जाएगा 1 इंटू 49। सो 49 के फैक्टर्स क्या हो गए? 49 के फैक्टर्स हो जाएंगे। सो द फैक्टर्स ऑफ 49 आर, 49 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? 1 7 एंड 49। सो 49 7 के टेबल में आता है और डायरेक्ट आता है 49 के टेबल में। तो 49 के फैक्टर्स क्या हो गए हैं? 1 7 49। देन एग्जाम्पल नंबर 8 24। सो 24 के फैक्टर्स निकालने हैं। 24 2 को अगर 24 इक्वल टू 1 इंटू 24, ठीक है। 2 को अगर हम डिवाइड करेंगे 24 के साथ तो 12 आता है। सो 2 12 सा 24। देन 24 इक्वल टू 3 के टेबल में 24 आता है। यस, 3 8 सा 24, 3 8 सा 24। देन 24 4 के टेबल में आता है। 3 6 सा 24। देन 7 के टेबल में आता है क्या? सॉरी 5 के नहीं आएगा, 6 का ऑलरेडी लिखा है, 7 के इसमें नहीं आता है। 8 नो, 8 आता है लेकिन ऑलरेडी हमने 8 लिख दिया है। देन 9 के टेबल में आता है क्या? 24 नहीं। 10 के टेबल में आएगा क्या? नहीं। डायरेक्ट ये क्या हो गया? 12 के साथ आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे 24 के, सॉरी यहाँ पे 4 इंटू 6 आता है। 4 इंटू 6, 4 के टेबल में 6 वाले प्लेस पे आता है 24। बाय मिस्टेकली आई रोट हियर 3। सो यहाँ पे फैक्टर्स क्या आ गए? सो द फैक्टर्स ऑफ 24 आर, 24 के फैक्टर्स क्या आ गए? 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। हम कैसे लिख रहे हैं? यू में लिख रहे हैं। 1 2 3 4 देन 6 8 12 24, इस तरह हम फैक्टर लिख रहे हैं इसके। देन एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 इज द 60। सो 60 इक्वल टू 2 को 30 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60 आता है। 60 इक्वल टू 2 को 3 को अगर 60 के साथ डिवाइड कर देंगे तो कितना आता है? 3 2 सा 60 मीन्स 20 आ गया है। देन हम डिवाइड करके देखेंगे 4 के साथ डिवाइड होता है क्या। अभी हम करके देखेंगे कि ये 4 के साथ डिवाइड होता है क्या। सो 4 60 के साथ डिवाइड होता है क्या? 4 1 सा 4 देन 2 0। सो 4 5 सा 20। सो 4 डिवाइड हो रहा है 60 के साथ मीन्स 15। सो नेक्स्ट फैक्टर हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 15। देन 60 इक्वल टू 5 के साथ डिवाइड होगा क्या? 5 के साथ हम डिवाइड करके देखेंगे। 5 1 सा 5, 5 1 सा 5 1 कैरी वहाँ पे 0, 5 2 सा 16, मतलब कौन सा आ रहा है? 12। 5 मल्टीप्लाई बाय 12। देन उसके बाद 5 हो गया 6। यस, 6 के टेबल पे 10 वाले प्लेस पे 16 आता है, 10 हो गया है। देन 7 डिवाइड होगा क्या? नहीं होता है। 8 के टेबल में 16 आता है क्या? नहीं आता है। देन उसके बाद 9 नहीं। 10 के टेबल में आता है, ऑलरेडी लिखा है। 12 का हो गया, 15 का हो गया, 20 का हो गया, 30 का हो गया है। एंड 16 इक्वल टू 1 इंटू 16, 16 इक्वल टू 1 इंटू 16। सो फैक्टर क्या हो गए? सो द फैक्टर्स ऑफ 16 आर, 16 के फैक्टर्स क्या है? 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 and 60. These are the factors of the 16. So
1 2 3 4 5 6, देन उसके बाद है 10 12 15 20 30 एंड 60। 60 के फैक्टर्स क्या निकल गए? 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 60। These are the factor of the 60. Then 10 numbers. In the 10 numbers is the 5. So 5 is present only 5 tables because this is the odd number and this is the odd number, and 5 is only present in the 5 tables. So 5 equal to 1 into 5. These only factors. So the factors of 5 are 5 के फैक्टर्स क्या है? 1 and 5. 5 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? 1 and 5, only 2 numbers. Then 11 12 13 and 14, these are the homework for you. आपको क्या करना है? इसको डिवाइड करना है हर एक नंबर के साथ. 10 11 12 13 and 14, all the homeworks. All is the homework. सो सेम करना है. सॉरी 10 तो हो गया हमारा. 11 से आपको होमवर्क है. 10 ऑलरेडी यू हैड डन. फ्रॉम द 11 12 13 and 14 you have a homework. Now next is the factor tree. The following diagrams are called the factor tree. जो नीचे डायग्राम दी है उसको बोला जाता है factor tree. They show the factors of the number. The number 1 is not shown in the factor tree since the factor 3 of every number. जब हम factor tree निकालते हैं तब हम 1 नंबर को शो नहीं करते. मीन्स हम 2 के साथ डिवाइड करते. 6 के फैक्टर्स क्या है? 3 and 2 है. नाउ 12 के फैक्टर क्या है? 6 into 2 करेंगे तो 12 होता है. नाउ 2 को हम डाउन साइड लेंगे क्योंकि 2 का फैक्टर्स नहीं निकलता है. देन 6 का फैक्टर्स हो जाएगा 3 into 2. सो 3 and 2 ये फैक्टर्स हो गए. देन 24, 6 मल्टीप्लाई बाय 4. 6 मल्टीप्लाई बाय 4 24 होता है. 6 के फैक्टर 3 and 2 हो जाएंगे और 4 के फैक्टर्स 2 and 2 हो जाएंगे. 2 and 6. So now look at here. Do you think 12 can also have a different factor tree? Show how. 12 का और फैक्टर हो सकता है क्या? Yes. 12 किसके टेबल में आता है? 12 3 के टेबल में भी आता है एंड 4 के भी टेबल में आता है 12. तो 12 के और फैक्टर हो सकते हैं? यस. हो सकते हैं? यस. यस 12 हैव अगेन फैक्टर्स. 12 के और फैक्टर्स है. यहाँ पे हम लिखेंगे यस 12 हैव अ डिफरेंट फैक्टर्स. 12 हैव different have a different factors. जो आपको एग्ज़ाम में दिया है 4 एग्जाम्पल में दिया है 12 6 into 2. इसके अलावा भी 12 के और फैक्टर निकल सकते हैं क्या? ऐसे क्वेश्चन में पूछा है. तो यस 12 हैव अ यस 12 हैव अ डिफरेंट फैक्टर्स. 12 को और फैक्टर्स है तो उन्होंने बोला है कि शो करो. सो 12 ठीक है. 12 लिया है. 12 का दूसरा फैक्टर लिख देंगे हम. 2 into 6 ऑलरेडी लिखा हुआ है. अभी हम लिख देंगे. अब लिख देंगे हम 4 and 3. 4 मल्टीप्लाई बाय 3. नाउ 3 के कोई भी फैक्टर नहीं निकलेंगे तो 3 को एज इट इज़ लिख देंगे. अभी 4 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 4 के फैक्टर्स हो जाएंगे 2 into 2. ने क्या किया है? 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया है. 4 3 सा 12 होता है. ठीक है. 3 को हमने एज इट इज़ नीचे लिख दिया है क्योंकि 3 के और फैक्टर नहीं निकलेंगे. 3 के और फैक्टर्स नहीं निकलेंगे इसलिए हमने 3 को एज इट इज़ नीचे कर दिया है. एंड 2 है. 2 के और 2 फैक्टर्स निकलेंगे. 2 के
4 के और 2 फैक्टर्स निकलेंगे, 2 इंटू टू, 2 इंटू टू क्या होता है 4 होता है। सो 12 का ये नेक्स्ट फैक्टर है। नाउ लुक एट हियर, कैन यू नंबर 24 हैव अ मोर फैक्टर ट्री, हाउ मेनी मोर। 24 के और फैक्टर्स है क्या ये पूछ रहे हैं, और कितने मोर फैक्टर्स है वो। यस 24 का यहाँ पे 6 इंटू 4 हो दिया है। 24 के और फैक्टर्स निकलते हैं। यस 2 इंटू 12 करेंगे तो 24 होता है। देन 3 इंटू 8 करेंगे तो 24 होता है। देन 6 इंटू 4 करेंगे 24 होता है। तो ये क्या होते हैं 24 के फैक्टर्स होते हैं। सो हाउ मेनी मोर पूछा है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लिख देंगे यस 24 हैव अ मोर फैक्टर ट्रीज। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सबसे पहले यस 24 हैव अ मोर फैक्टर ट्री, हैव अ मोर फैक्टर ट्री। इसके और फैक्टर ट्रीज निकल सकते हैं। तो वो पूछ रहे कि हाउ मेनी मोर, कितने निकल सकते हैं। तो ये देखो हमने 24 का यहाँ पे फैक्टर्स निकले थे, ठीक है। सो ये 4 यहाँ पे हमारे यहाँ पे जो दिया है कितना दिया है 6 इंटू 4 दिया हुआ है, ठीक है। कैन यू नंबर 24 हैव अ मोर फैक्टर, यस कितने मोर फैक्टर्स होते हैं 1 2 3 4। कितने होते हैं ये तो छोड़ना पड़ेगा क्योंकि 1 इंटू 24 होता है। तो 24 के कितने फैक्टर्स होंगे 1 2 3। तो यहाँ पे क्या आएंगे हाउ मेनी मोर, सो दे हैव अ मोर 3 फैक्टर्स। उसके कितने और मेनी फैक्टर्स निकलेंगे 3 निकलेंगे। कितने निकलेंगे 3। दे हैव अगेन दे हैव अ 3 मोर फैक्टर्स। तो हम तीनों को यहाँ पे निकाल के देखेंगे, ठीक है। 24 लिखेंगे और 24 का फर्स्ट वाला फैक्टर्स क्या हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। 2 को हम एज इट इज़ लिख देंगे क्योंकि 2 के फैक्टर्स नहीं निकलेंगे। देन 6 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 6। तो यहाँ पे हम 2 को एज इट इज़ लिख देंगे और 6 के फैक्टर्स क्या निकलेंगे 2 इंटू 3। नाउ 2 और 3 दोनों नंबर्स के फैक्टर्स नहीं निकलेंगे, 2 एंड 3 के फैक्टर्स और नहीं निकलेंगे। तो 24 के फैक्टर्स क्या आ गए 2 2 3 2, ये 24 के फैक्टर्स आ गए। देन 24 है, इसको अगर हम 24 को अगर हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 24 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 8 सा 24। तो यहाँ पे हम 3 8 सा 24। सो यहाँ पे हमने 3 8 लिख दिया है। यहाँ पे 3 को हम एज इट इज़ लिख देंगे क्योंकि 3 के फैक्टर्स नहीं निकलेंगे। यहाँ पे हम लिख देंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 मल्टीप्लाई बाय 2। देन 4 के और फैक्टर्स निकलेंगे, यस 2 मल्टीप्लाई बाय 2। 2 के फैक्टर्स नहीं निकलेंगे और 3 के फैक्टर्स एज इट इज़ हो जाएगा। तो 24 के और क्या फैक्टर निकल गए 2 2 2 3, ये 24 के और फैक्टर्स निकल गए। देन 24 लिख देंगे और 24 के और कौन से फैक्टर्स हैं 4 इंटू 6, 4 इंटू 6 है। तो हम यहाँ पे 4 लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे 6 लिख देंगे। ये दोनों के भी फैक्टर्स निकलेंगे, 2 इंटू 2 4 होता है एंड 2 इंटू 3 6 होता है। तो 24 के और कौन से फैक्टर्स हो गए 2 2 2 3, ये 24 के फैक्टर्स हो गए। 2 2 2 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये 24 के फैक्टर्स निकले। अगर आप इसको कॉमनली देखेंगे, अगर इसको आप ऑब्जर्वेशन करोगे तो लास्ट वाला फैक्टर देखो सबका सेम है। यहाँ पे 2 2 2 3 है, यहाँ पे 2 2 3 2 है और यहाँ पे भी 2 2 2 3 है। मतलब लास्ट वाला फैक्टर सभी इसमें 3 टाइम्स 2 आ रहा है और 1 टाइम 3 आ रहा है, 1 टाइम 3 आ रहा है और 2 टाइम 3 आ रहा है। सो दिस इज द फैक्टर्स ऑफ 24। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, मेक द टू फैक्टर ट्री ऑफ द each. This we will be see in the next period. So I hope all of you nicely understood. Thank you and have a nice day.